Good afternoon, my dear students. In my present video, I'm discussing about verbs. How many type of verbs are there? While composing a sentence, we need noun, we need subject, we need predicate part also. When our noun ends and predicate part starts, that is the verbal phrase of our sentence, because every sentence can be divided into two parts. One is noun phrase and second is verb phrase. When we are dealing with noun phrase, we are dealing with determiners and noun only, not verb. We are not dealing with the verb part. We are dealing with the noun part only. The words which comes before noun, who are called determiners plus noun. These are the noun phrasal. But when we are discussing about the verbal phrase, we have to go through lot of changes. Sometimes we have to use helping verb. Sometimes we have to make verbs. When we are making the helping verb, they are also indicator of present, past and future. Suppose we are dealing with do does, they are signalize present indefinite tense. When we are using did, it signalize past indefinite tense. When we are using will or shall, they are the presentation of future tense. Same is the case with verb also. Whenever we talk about the verb, I always talk to the students just to remember all the verbs. First form of the verb, second form of the verb, third form of the verb, they are all very important when we categorizing all these verbs into tenses. We are using the same helping verb, but it indicates little bit difference when we are putting our main verb. Ram जा रहा है. Ram is going. Here I am going to the progressive. जा रहा है. राम जाता है. राम goes. राम नहीं जाता है. राम does not go. राम हमारा सब्जेक्ट पार्ट है और जहाँ हमारा डज स्टार्ट हो रहा है ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है. इसी को हम वर्बल फ्रेज मानकर चलते हैं. इसके साथ आपको एक और जानकारी रखनी है कि जब भी हमने वर्ब को यूज़ करना है हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है. पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स लगा रहे हैं या वीक वर्ब्स लगा रहे हैं. अब आपने देखा नॉक, KNOCK, नॉक्ड, नॉक्ड, तीनों वर्ब में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, हमने प्लस ed लगाया. तो these type of words which are followed by ed, we can say that these are the weak verbs. But go, went, gone, come, came, come, here you will see there is lot of changes. There is interchange of vowels. Come, COME, we are applying O vowel. Came, we are applying A. When there is interchange of vowels is there, we have to keep this thing in our mind. When there is interchange of vowel, interchange of the words of the vowels are there, they are called strong verbs. So when we are using with the strong parts, we are dealing with the weak parts, we have to keep in our mind how we have to change the verbs. These things you have to remember by heart. Go, went, gone. यहाँ देखो वर्ड्स की टोटली चेंजेस है. गो है, फिर हमने वेंट लगाया है, फिर हमने गोन लगाया है. In all these three parts, we see we are using different type of variation. तो जब भी हम वर्ब की बात करें पहले आपको हेल्पिंग वर्ब क्लियर होने चाहिए. हमने इसे हमारा कहाँ लगाना है, वाज वर, हैज हैव हैड कहाँ लगाना है एक तरफ. दूसरी तरफ हमने डू और डज कहाँ लगाना है, डिड कहाँ लगाना है,
विल और शेल कहाँ लगाना है, हैज़ हैव कहाँ लगाना है, हैड कहाँ लगाना है, विल हैव कहाँ लगाना है, शेल हैव कहाँ लगाना है, हैज़ बीन वर्ब प्लस आईएनजी कहाँ लगाना है, हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी हमने कहाँ पर लगाना है। ये चीज़ें जब तक हमें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम वर्ब की फॉर्मेशन को या वर्ब को किस प्रकार हमने सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है, किस प्रकार ऑब्जेक्ट से जोड़ना है, हमें कभी भी नहीं आएगा। तो 2 चीज़ें मेरे बच्चों ने लर्न करनी है। वर्ब की फॉर्में लर्न कर लेनी है आपने, वर्ब की फॉर्में बाय हार्ट लर्न करनी चाहिए, उनका हिंदी मीनिंग भी आना चाहिए आपको। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब पे आ जाना चाहिए, सारे हेल्पिंग वर्ब लर्न होने चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कौन से लगा रहे हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में हम कैसे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें लर्न करने के बाद अब हमें आना चाहिए कि हमने वर्ब को कैसे अप्लाई करना है। हमने ये देखना है सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से, जब हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आ जाता है, मेन वर्ब जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं फिर हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चल पड़ेंगे। कैसे नेक्स्ट पार्ट के, कई बार हमने वर्ब से पहले टू लगाना है। आई वांट टू गो टू, आई वांट टू गो टू स्टेशन, तो यहाँ पर आपने देखा हमने इन्फिनिटिव लगाया। वर्ब प्लस टू या टू प्लस वर्ब, दे आर कॉल्ड इन्फिनिटीज, जब हम टू वर्ब के साथ अप्लाई करते हैं। और वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब, तब हमने देखना है कि हमारे अपनी फॉर्म को कैसे चलाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चलाना है, सेकंड कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चलाना है, तो हमने कैसे, आई वांटेड टू गो टू, हमने पास्ट टेंस दिखाना है, हमने प्रेजेंट टेंस दिखाना, आई वांट टू गो टू। तो ये चीज़ें हमने ध्यान रखनी है कि हमारा इन्फिनिटिव पार्ट भी चलता है। कई बार हमारा वर्ब जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म दिखाता है, कंटिन्यूस टेंस दिखाता है जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, आई एम नॉकिंग एट द डोर। यहाँ पर नॉकिंग, नॉक वर्ब है लेकिन हमने नॉक के साथ क्या लगाया, आईएनजी, आई एम नॉकिंग एट द डोर। तो हमने यहाँ पर, तो जब हम उसी नॉकिंग को वर्ब प्लस आईएनजी को कई बार हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आई हेट टी, मैं चाय पीने से घृणा करता हूँ। आई डू नॉट टेक टी, फिर लगाते हो आई एम टेकिंग टी, प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी। टेकिंग लॉट ऑफ टी इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब टेकिंग यहाँ पर वर्ब का काम नहीं कर रहा, ये यहाँ पर हमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये वाली जो फॉर्म होती हैं वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, लेकिन वर्ब प्लस जो आईएनजी जब हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, आई हेट ड्रिंकिंग टी, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब भी हमने वर्ब देखना है हमने ये ध्यान रखना है कि वो वर्ब जो है इन्फिनिटिव के रूप में कैसे यूज़ करना है, सिंपल वर्ब के रूप में कैसे, पास्ट में कैसे करना है, फ्यूचर में कैसे करना है, और परफेक्ट में कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें आपने बाय हार्ट लर्न करनी है। और आज मेरे बच्चे इतना ही करेंगे और मैं चाहूँगी कि आप इस लेसन को चलाए रखो, और जैसे मैं आपको इंडिकेशंस देती हूँ, इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। आज मैंने इंस्ट्रक्शन दी, आपने वर्ब की फॉर्में लर्न करनी है और फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लर्न करने हैं, और मुझे आशा है मेरे बच्चे लर्न करेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट लेसन जो है वो बिल्कुल अच्छी रूप से चल सके, और यू विल आल्सो असिस्ट मी एज अकॉर्डिंगली। सो आई once again ask each and every learner here to like and subscribe this channel so that you would see lot of other series automatically. Thank you.